Hi, Abdisa. How are you? Hi Ruby, I'm fine. How are you? I'm also doing good. First of all, I would like to say thank you for accepting my invitation to give your interview about your experience and all. Thanks a lot because it really means a lot for my students also. So thank you a lot. So सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये है कि आपको रिसर्च की तरफ कैसे मोटिवेशन मिला? To be very frank, इंडिया में या सिर्फ ओडिशा में मुझे पता नहीं, हमारा एक ट्रेंड है कि अगर बच्चा साइंस लेता है प्लस टू के बाद, मतलब प्लस टू में अगर साइंस लेता है तो इधर ही विल परस्यू इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये तो तुमको पता है. So very few students are there who actually want to do research after their intermediates. But like a normal and ordinary student, I also aimed for medical actually. Then failure तो होता ही है लाइफ में. फिर then I took graduation as zoology ताकि मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर सकूं. This is happens with most of the students in India. कि अगर नहीं होता है तो कहीं ग्रेजुएशन का एडमिशन कर लो एंड प्रिपेयर करो और 2 साल बैठ के. So I took up the same trend. I was none other than that. Then after that, finally I took my interest slightly inclined towards the subject zoology. And मैं मेडिकल से थोड़ा दूर चली आई. Since it was 1 year I was continuing, मैंने ट्राई किया, but I felt like I was lacking that enthusiasm that was in 12th कि मुझे डॉक्टर बनना है. When I took my depth plunge into the subject, then I wanted to know more and more. And from there मैंने वो जो ख्याल था कि मेडिकल का फेलियर है वो धीरे धीरे फेड हो गया माइंड से. Then I took my career turn in second year of my graduation. Then मैंने सोचा कि मैं MSc कर लेती हूँ. फिर कभी सोचा नहीं था कि PhD करना है, नहीं इसको जानना है करके I will take up life science as my career. आगे जाके लाइफ साइंस में क्या करना ये पता नहीं था. So then MSc किया. फिर MSc में एंथुसियाज्म जब देखा कि बायोटेक्नोलॉजी एक मतलब सब्जेक्ट है, उसमें RNA DNA आइसोलेशंस वगैरह, एंड दैट अगेन अट्रैक्टेड मी. सो आई डिड MPhil. देन MPhil में बस मन नहीं भरा. जो ग्रीड होता है ना कि नहीं और कुछ आगे जाना है, इसमें कुछ और करना है, देन रिसर्च की तरफ पूरा घूम गया कि नहीं मुझे फाइनली रिसर्च करना है. And this was the story. Nice. I mean, it's really nice because सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं से हर एक दूसरे को इंस्पायर करती है. ठीक है. So अच्छा, तो फिर अभी से फिर आपने कहाँ पे PhD के लिए ज्वाइन किया, कैसे किया? After doing my graduation, I did my graduation in zoology, as I said, from a very prestigious college of Odisha, that is BJP Junior Autonomous College. Then after that, I took up PG degree in Sambalpur University, that is School of Life Sciences. And in between that, I appeared for many exams, like I applied for integrated PhD in NIMHANS. I wanted to pursue my PhD in neurosciences at that. So neurosciences में बहुत इंटरेस्ट था तब मेरा, तो निमहांस में डाला था एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. And then I was selected for actually there is a institute, National Brain Research Center करके गुड़गांव में है, मानसर. तो I was selected for the interview round. Unfortunately I was also मतलब failed in that also. Then I was selected in Sambalpur University Life Sciences, and I took up the 2-year program seriously. And then I did my MPhil from that institute only. And that was from genomics, biotechnology and applied sciences. So then I did my PhD now in zoology, but specifically I did it in biochemistry and molecular biology. मतलब कहाँ से ये संबलपुर यूनिवर्सिटी? OUAT से. हाँ, संबलपुर यूनिवर्सिटी के बाद मैंने PhD OUAT से लिया है, जिसको मतलब ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. So basically it's a agriculture technology, but I pursued in basic life sciences.
एंड लाइक व्हाट वाज योर वे, लाइक कैसे आपने रजिस्टर किया? कोई एग्जाम था, इंटरव्यू था, कैसे अप्रोच किया? Actually, after appearing the final exam, final semesters of PG degree, I applied for GATE exams, and then I also applied for NET exam. Then I went through TIFR exam. So I applied everywhere. But fortunately, I got a good GATE rank score. That was around 89 and 89.5 percentile. So, but that was not enough to be selected for some institutes, prestigious institute like ILS. उसमें select नहीं हुई, but fortunately I again got a chance in National Brain Research Center. So I was selected there also, but due to some family responsibilities, I had to leave that. Then again I searched for opportunities in Bhubaneswar because my family was around. So I had to take up opportunities in Bhubaneswar, and then I got through the entrance exam of OUAT. So in that PhD entrance exam, finally I was selected and I registered myself. अच्छा, नाइस नाइस. सो अभी जो आपने पीएचडी किया उसका क्या टॉपिक था? लाइक व्हाट वाज द टाइटल ऑफ योर पीएचडी वर्क? In reference to the salinity stress and water deprivation stress in Heteropneustes fossilis. Heteropneustes fossilis was my model organism, जिसको हम सिंगी फिश बोलते हैं commonly. Stinging catfish. Nice, nice, nice. So it was completely biochemistry, मतलब सब ऐसे experiments जो था, it was completely biochemical. Oh, nice, nice. So during your PhD life, like जो भी था, like we all know that so much ऐसे क्या कहते हैं stress आता ही है. So like in your life, in your PhD moment, ऐसे था टाइम जहाँ तुम्हें लगा oh my god मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा? Because in my experience मुझे तो हुआ है, मुझे तो insomnia हो गया था. And it took, you know, a week time to get back to my normal state. मुझे इतना stress हो गया था. So like, what about you? I mean, did you face that? Like, plus you were staying with your family, right? तो मैं तो अकेली थी. It was difficult for me, but थोड़ा सा benefit तो होता ही होगा जब आप family के साथ रहते हैं, right? Last वाला portion I couldn't hear you actually. अच्छा अच्छा. मैंने बस ये पूछा कि जो stress होता है, insomnia, stress. हाँ. विश थी कि मैं एक वेल एस्टेब्लिश्ड लैब में करूं उड़ीसा में. सो बट आई कुडंट क्वालिफाई फॉर दोस. सो एक्चुअली जब मैं पीएचडी टेकअप की थी वो ऐसा मतलब फॉर्चुनेटली जो एचओडी थे मेरे डिपार्टमेंट में, ही आई वाज सर्विंग एज ए गेस्ट लेक्चरर इन अनुगुल. So at that time he visited and he approached me कि तुम PhD करो, तुम क्यों यहाँ पे time waste करो. He was the first motivation behind that तुम PhD करो करके. So I applied there and I got through OUAT. Then सबसे बड़ा motivation वही था. When I came to OUAT, I thought कि यहाँ पे मतलब well established lab होगा and I will work smoothly and walk away from here. Within 3 years. OUAT में 3 years में डिग्री मिल जाता है काम खत्म होने के बाद. तो ये मतलब सेटअप था मेरे माइंड में. बट मेरे जो गाइड थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट. एंड ही यूज्ड टू टेक द रिपोर्ट ऑफ एवरी डे. मैंने ये काम किया, आई यूज्ड टू मेल हिम एवरी डे. एंड तब मैं सोचती थी कि नहीं ये क्या मतलब मेल करना है डेली डेली का. बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ डिसिप्लिन एंड अ सिंसियर स्टूडेंट. सो तब मुझे लगता था कि नहीं मैं मतलब गिव अप कर दूंगी, ये मतलब मेरे से काम नहीं होगा. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज द फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट ऑफ माय बैच who registered in College of Basic Sciences. So for PhD करने के लिए वहाँ पे उतना lab setting नहीं था. So from ground zero, not ground zero exactly, some instruments were there. तो एक नया सा lab एक PhD level का setup करने के लिए time लगता है.
मेरे गाइड ने मुझे बहुत हेल्प किया, बट हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेंटली जो हम लोग जाते हैं टर्मोइल के साथ कि नहीं ये नहीं हो सकता, गाइड बोलता है इसको करना पड़ेगा, अभी के अभी करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस। तो तब मोमेंट आया था कि नहीं गिव अप कर लूंगी। देन अगेन जो मोमेंट आया कि मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, देन स्टैंडर्डाइजेशन जब चल रहा था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग अ पीएचडी स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोटोकॉल्स, यू नो दैट। तो उसमें जब नहीं आते हैं रिजल्ट्स स्टैंडर्डाइज करने में, इसे ऊपर नीचे करते करते माइंड इतना खराब होता है कि क्यों स्टैंडर्डाइज करना है, मुझे बस करना है, जो आए उसको, ना आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं पे एक मोड आया था कि नहीं गिव अप कर लूंगी। फिर थोड़ा फैमिलियर प्रेशर, मैंने मतलब मैरिज के बाद जो फैमिली का प्रेशर होता है एक मतलब डॉटर इन लॉ के ऊपर, तो तब भी मैं मतलब सोची थी कि नहीं तो अभी नहीं होगा, और इतना अगर गाइड चाहता कि तुम फुल टाइम दो, यहाँ पे मतलब इन लॉज और हस्बैंड भी चाहता है फैमिली को टाइम दो, तो विद इन द हसल ऑफ दोज टू थिंग्स आई वाज कंप्लीटली मतलब थिंकिंग कि आई शुड गिव अप पीएचडी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो तब एक मोमेंट आया था कि मैं गिव अप कर लूंगी। फिर during that moment I actually went to Pune, you remember IISER Pune. So there I got more motivations from you guys, saying that you all are so enthusiastic dynamic people around me. तो फिर जब लौट के आई फिर और एक एनर्जी के साथ आई, then I again continued my work. Then I went for publishing papers. जब पेपर पब्लिशिंग की बात आती है, you get a lot of rejections from good journal. तो तब माइंड में आता है कि मेरा काम इतना इफेक्टिव नहीं है, आई कांट पब्लिश अ गुड पेपर रिगार्डिंग माय थीसिस एंड ऑल। तो तब एक मोमेंट आता है कि हम गिव अप कर ले, सबके लाइफ में ये आता है कि फर्स्ट पेपर जब कम्युनिकेट होता है दैट इज अ वेरी मीन्स डिप्रेसिंग टाइम, बिकॉज तुम 6-7 जर्नल से रिजेक्ट होने के बाद उसके बाद क्या सोचोगे कि तुम्हारा पीएचडी गया भाड़ में, इतने साल जो 4-5 साल तुम गुजारे हो, इतना एफर्ट्स दिए हो, वो तो भाड़ में ही गया। देन अगेन फिर कंटिन्यू, माय गाइड वाज क्वाइट मोटिवेटिंग, नहीं तुम इसको करो, यू गिव मी, यू डू दिस पोर्शन एंड गिव मी। एंड तब मैं सोचती कि क्यों मेरे पीछे, मतलब किसी भी जर्नल में पब्लिश हो जाए मुझे तो दे के जाना ही है, पीएचडी कहीं कहाँ लेके जाना है, मेरे माइंड में ये चला था कहीं पे भी पेपर पब्लिश हो जाए। बट ही वाज क्वाइट अ विजनरी पर्सन, so he used to apply in good journals, so that takes a lot of time and lot of patience. So finally I published 3 papers in a very good journal. तब तो डिप्रेशन था कि गिव अप कर लूंगी, बट नाउ आई एम क्वाइट कंटेंटेड, आई एम फीलिंग क्वाइट कंटेंटेड बिकॉज आई हैव 3 पेपर्स, वन मेथोडोलॉजी का जिसका जो टाइम पे मैं सोच रही थी कि गिव अप कर लूंगी कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, उसका एक पेपर आ गया मेरे पास। और सेकंड थिंग कि मेरा वेट लैब का एक पेपर आ गया with impact factor of 4.22 and then मेरा रिव्यू का जो पेपर आया फिर वो भी 3.89 में आया इम्पैक्ट फैक्टर में। तो अभी जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब जो पेशेंस था 4 साल के मतलब ड्यूरेशन में कि टर्मोइल के बाद, नाउ द रिजल्ट्स आर क्वाइट मतलब स्वीट, जो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो आएंगे, मतलब जो भी कोई इसको रेफर कर रहा होगा अपने पीएचडी के टाइम अभी कर रहे होंगे, तो उनको मैं बोलना चाहूंगी कि देखो जो मेंटल डिप्रेशन और टर्मोइल तुम लोग अभी गुजर रहे हो, दिस हैपेंस इन एवरीवन्स लाइफ, बट द रिजल्ट्स आफ्टर यू गेट द रिजल्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्मोइल, यू विल जस्ट फेड, मतलब इग्नोर करोगे कि ये डिप्रेशन कुछ ही नहीं था इन रिएक्शन टू दैट रिजल्ट। Yes, yes. लिसनिंग टू यू अभी मुझे भी ऐसे ही लगता है कि लाइक उस टाइम तो इंसोम्निया हो गया था, इतना परेशान हो गए थे, एंड नाउ आई थिंक वो तो कुछ भी नहीं था, लाइक लाइफ में इतना कुछ है हमें देखने को, दोस डेज विद नथिंग, ऐसे ही हम लोग स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे। नाउ इट सीम्स वेरी स्मॉल थिंग्स, राइट? Last year I was selected for doing COVID RT-PCR testing.
Okay, that was not a part of my PhD, but since my vice chancellor approached कि तुम जाके काम करो करके, because you are quite trained in biotechnology part and PCR you have done, so मैंने टेक अप किया था. तो तब एक मोमेंट आया था कि मेरे गाइड मुझसे नाराज हो गए थे थोड़ा. तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी मतलब मैं पूरा मतलब डिप्रेस हो गई थी. देन आई थॉट कि ये तो कभी नहीं मानेंगे मेरे गाइड, तो मैं गिव अप ही कर लेती हूँ. देन आई टोल्ड हिम फ्रैंकली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि मैं पीएचडी और नहीं करूंगी, मैं चाह रही हूँ. सो दिस वाज द मतलब लेवल ऑफ डिप्रेशन आई वाज गोइंग थ्रू कि मैं गाइड के सामने ही बोलती, सर मेरे से नहीं होगा, मुझे छोड़ दीजिए. But see now, टुडे मतलब अभी मैंने थेसिस सबमिट करने के बाद आई जस्ट फील कि नो, माय गाइड वाज इन द राइट पाथ. उन्होंने कभी मुझे स्पून फीडिंग नहीं किया था. That's really nice, Avipsa. मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना सुन के. I'm really happy and congratulations on submitting your thesis. So I hope soon Viva is going to be there. Thank you so much. I don't know exactly, but because it take around 2 months after the submission. So अभी तो कोविड का टाइम है, पैंडेमिक टाइम है. I don't know that there will be online Viva. Okay. But exactly the dates are not yet released. No, it will take time because when I was giving, it took around 5 months. मेरे सबमिट करने के 5 महीने बाद मैंने वाइवा दिया. So it takes time actually. Yeah. इतना टाइम एक्चुअली OUET में इतना टाइम तो नहीं लेंगे. फिर भी 2 महीने मान के चलते हैं. अच्छा, that's nice because हमारे like in our case वो thesis check होके आने में, so it was given एक साइंटिस्ट था जिसको कोलकाता में दिया था, एक पता नहीं कहाँ दिया था, I don't even remember. तो उनका पार्सल होके आते आते thesis check होके करते करते it took around 4-5 months in my case. So anyways, yeah, I'm happy it was done in time. और क्या चाहिए हमें, right? So yeah. So अविप्सा, और कुछ सजेशन देना चाहोगे जो अभी बच्चे पीएचडी के लिए रजिस्टर होने वाले हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए और कोई सजेशंस आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है? सजेशन टू बी मतलब क्या सजेशन, सबका अपना अपना तरीका होता है. लेकिन फिर भी हम लोग जो एक्सपीरियंस लेके निकले हैं, तो उसी एक्सपीरियंस से एक बात बोलूंगी कि अगर यू आर रियली मतलब डेडिकेटेड टू डू अ रिसर्च, नॉट दैट कि हमको डिग्री लेना है, it's not a degree oriented thing. You have to do a research that should be effective. Like if you are publishing it in good journals, means that would be referred by many policy makers, that would be referred by many sector persons, that they will implement the same thing in their field to get the efficacy, to develop that process. So तुमको उतना ही मतलब डेडिकेशन उसमें देना है ताकि वो किसी के काम में आ सके. So not just pursuing कि कुछ डाल दिया, इतना ml डाल दिया उस केमिकल A, केमिकल B में उतना डाल दिया, केमिकल C में उतना डाल दिया, चलो मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया. ये पीएचडी नहीं है. मैं क्यों डाल रही हूँ, कैसे डाल रही हूँ, और इसका रिजल्ट क्या होगा, और इसका एनालिसिस करके मैं कैसे मतलब एक लैब टू लैब को वर्क जो कर सकूं. क्योंकि लैब में जो करते हैं वो अल्टीमेटली लैंड में वर्क होना चाहिए. सो दैट शुड बी एप्लीकेशन टू योर वर्क. सो यू शुड हैव दैट मतलब मेंटालिटी, नॉट दैट हाँ ये कर लूंगी वो कर लूंगी, अच्छा पेपर आ जाएंगे, then I will go for doing a good lectureship और assistant professor बन जाऊंगी. ये नहीं है. Research is something जो सर्च कर करके रिसर्च होता है. तो आपको पेपर्स भी ज्यादा रेफर करने पड़ेंगे. तो अपना फंडामेंटल, अपने फील्ड में जो फंडामेंटल है उसको लेना पड़ेगा. टू बी वेरी फ्रैंक रूबी, आई वुड टेल यू कि मैं इतना मतलब अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में घुस गई हूँ कि आई हैव आल्सो फॉरगॉटन द बेसिक्स ऑफ +2 जूलॉजी आल्सो. मतलब इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इतना मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया, कॉम्प्लेक्स एंजाइम, इसमें हम लोग इतना घुस गए हैं कि अभी अगर तुम पूछोगे कि ये फाइलम कौन सा है और उसके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन आई वुड थिंक फॉर सम टाइम.
तो उस लेवल का होना चाहिए कि you should forget everything and you should be thorough with all the PhD work you have done, and you should, moreover, you should have an outlook. Before you plan your hypothesis, you should have an outlook कि तुम्हारा काम जाके कहाँ पहुंचेगा. Nice. So this would be my only suggestion. Avipsa, thank you so much like for being with us and जो sharing है, your experience. I'm very thankful to you that you gave me this platform that I should मतलब express my experience. And I don't know if how many people are going to follow this, मतलब take my experience as a basis to forge ahead. But still then I would then suggest one more thing, that you should appear for every entrance examination, वो चाहे GATE हो, NET हो, ICAR का मतलब हो, ICMR का हो, जो don't just leave any exams. जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, सपोज ICMR में ये काम चल रहा है, यू जस्ट गो थ्रू, जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट है वहीं पे डालते जाओ. यू नेवर नो मतलब कहाँ पे तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाएगा. Yes. हाँ. Thank you so much, Avipsa. I hope students को अच्छा लगे. Like what we can do is हम help कर सकते हैं. Rest all is there. Like they need to do the hard work for their own career, right? We are here just for the guidance. So I hope मेरा ये छोटा सा initiative जो है उनके काम आ जाए. That is just what my motto is over here. Well, Ruby, in this context, I would like to tell you that you have started a very nice platform, sitting at home at this current time during the pandemic, reaching out to students in this manner, and giving some motivational experiences from us, and also running your online concepts over the YouTube. And this is a fabulous job that you are doing. And I would really be thankful and congratulations कि तुम्हारे और सारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो. और क्या, बस वही तो चाहिए. और just forge ahead. I would also, my best wishes are always with you. Thank you. And all the best for your Viva, upcoming Viva. Soon going to be called as a doctor. जो सपना देखा था वो पूरा होगा, डॉक्टर बनने का. डॉक्टर. चलो, थैंक यू. So guys, जैसे कि अभी हमने अभिप्सा को सुना, like we heard about her story, उसने कैसे मैनेज किया सब कुछ, right? घर, परिवार, लैब, बॉस, कैसे मैनेज किया. बहुत ही डिफिकल्ट होता है, but it doesn't mean that कि हम उसको नहीं कर सकते. ठीक है. So now what I'm showing is the list of the publication what she has done. ये मैंने सिर्फ उसकी first author वाले या कुछ second author की मैंने share की आपके साथ. So guys, if you're interested, you can go through these and आप देख सकते हैं किस तरह के काम किए गए हैं. And she has done a very beautiful job in the research field and बहुत ही अच्छे जर्नल में उसने पब्लिश किया है. So one is like modification of the time of incubation in the calorimetric method for accurate determination of the total antioxidants. And इसके लिए हमने कौन सा किया, DPPH वाले ऐसे किया है. Okay, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. So she is actually sharing over here the second authorship over here. And काफी अच्छे काम किए हैं. ये शायद joint collaboration में काम किया है. 2 publication और है यहाँ पे. So guys, अगर आपको टाइम मिलता है तो you can go through this and you can read about it. तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के काम लैब में होते हैं और आपको किस तरह के पब्लिकेशन मिल सकते हैं. So guys, I really hope आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट. एंड it doesn't matter that अगर आपने CSI क्लियर नहीं किया है तो it's okay. Don't stress your life that thinking about like मैंने CSI क्लियर नहीं कर पाया, मैंने DBT ICMR नहीं कर पाया. Go to good universities, join there for your PhD, and from there also you can do a good research over there. You can see her paper, like she has really published in good journals. So अगर आपके पास अच्छी publication, it doesn't matter आपने कहाँ से PhD की है, and अगर आपका interest है, you can also apply for the postdoc or you can go for the academic like assistant professor job position. ठीक है guys. अगर आपको कुछ भी डाउट है, like if you want to join Odisha University from the agriculture technology, अगर आपको वहाँ ज्वाइन करना है, कोई भी डाउट है, कैसे करना है, क्या करना है, तो guys you can just put into the message comment box and
we can put into the comment, you can put into the comment box and I'll let me help you there. Okay, so all the best guys, keep watching.